friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. I hope that now your base of English is strong and the hustle of building our base has come towards an end. But guys, this is not the final destination of our target. This was just a phase of our journey which was bound to be climbed. As if you are planning to build a dynamic building, it is very essential to build a strong base, and that's what we were doing since so many days. And now it's time to proceed further and to climb one level up of base of the subject. Guys, have you ever noticed how do we communicate in our day-to-day life? If not, I'll let you know what I was talking about. Guys, actually verbs play a very important role in spoken English, and without verbs, our spoken English will just be like the food without salt. Let's see. If you want to say about your work to someone, then you'll say, मैं वाशी में काम करता हूँ, मैंने पैसे भेज दिए हैं, वह मुझसे मिलने आया था. Now guys, tell me one thing. Can you deliver these types of sentences without verbs? No, you can't. Then guys, we must know what are verbs. Verbs are action words which we do whole day in our day-to-day life. Like I'm teaching you. Then here teaching is an action word. And there are many action words. For example, eating, coming, going, sleeping, talking, and so on. Guys, these are Hindi verbs. Let's see. Chalna, khana, ana, jana. And these verbs in English are to walk. Now here, to eat, to come, and the last one is to go. Guys, यहाँ पर देखिए जो ये हिंदी की मुख्य क्रियाएं हैं इनमें लास्ट में ना लेटर आ रहा है. देखिए चलना, खाना, आना एंड जाना. तो गाइस जो ये हिंदी की मुख्य क्रियाएं हैं इन्हें हम ज़्यादातर सेंटेंस में एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं. जैसे कि अगर आपको कहना है मैं चलता हूँ, तो आप इस तरह से नहीं कहेंगे मैं चलना हूँ. आप इसके रूप को बदल कर कहेंगे मैं चलता हूँ. तो हम हिंदी की मुख्य क्रियाओं को उसके रूप बदल कर ही इस्तेमाल करते हैं. बट देयर इज़ वन मोर ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, दैट इज वी मे यूज एज इट इज इंग्लिश वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, I eat pizza. I come with you. I go to bed at 10 p.m. every day. तो देखिए हम इंग्लिश के वर्ब्स को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर हिंदी के हम कर नहीं पाते हैं. तो गाइस, सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से हैं. लेट मी राइट सम वर्ब्स. Walk, walked, walked. Come, came, come. Now see, go, went, gone. Now, as you can see, there are three types of verbs. Which verbs are in first column? They are called first form of the verb. So here, first form.
Now see, first form of the verb are called main verb and they are used in present tense. So guys, which verbs are in second column? They are called second form of the verb. So here, second form. And they are used in past tense. And which verbs are in third column? They are called third form of the verb, or you can say past participle of the verb. But don't assume that they are used in future tense. When they can be used, I'll tell you later. So guys, आपने यहाँ पर देखा कि इस तरह से 3 फॉर्म हैं जो हमारे वर्ब्स के होते हैं. लेट मी राइट हियर थर्ड फॉर्म. ओके, सो today's topic is 3 forms of some selected verbs. Today's topic is 3 forms of some selected verbs. Guys, as you can see, these verbs are first form of the verb and they are second form, and these are third form of the verb, or you can say past participle of the verb. Guys, have you noticed one thing? I have written here number 1 means category 1. Which verbs have second and third form same? They will be in category 1. So let's start. Act, अभिनय करना. Its second form is acted and third form is acted. Now adopt, स्वीकार करना. Adopted, adopted. Third one is agree, सहमत होना. Agreed, agreed. Allow, आज्ञा देना. Allowed, allowed. Appear, प्रकट होना. Appeared, appeared. Arrive, पहुंचना, or you can say आना. Then second form is arrived and third one is arrived. Attack, हमला करना. Attacked, attacked. Now attend, उपस्थित रहना. Attended, attended. Behave means व्यवहार करना. Behave, behave. Now here believe means विश्वास रखना, या फिर आप कह सकते हैं प्रतीत होना. Now here believed, believed. Now bring means लाना. Brought, brought. Buy, खरीदना. Bought, bought. Build means बनाना. Built, built. Borrow, उधार लेना. Borrowed, borrowed. Boil, उबालना. Boiled, boiled. Burn, जलाना. Burnt, burnt. Catch, पकड़ना. Caught, caught. तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनके लिए हमने सेकेंड या थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए टी का उपयोग किया है. तो देखिए यहाँ पे ब्रॉट, बॉट, बिल्ड, या फिर आप कह सकते हैं बर्न या कॉट. तो ऐसे भी कुछ क्रियाएं हैं जो जिनमें डी या ईडी नहीं लगता है, उन्हें हम चेंज करने के लिए टी का उपयोग होता है. कॉपी, नकल करना. कॉपीड, कॉपीड. नाउ नेक्स्ट वन इज कैरी मीन्स ले जाना. कैरीड, कैरीड. क्लीन, साफ करना. क्लीन, क्लीन. क्लाइंब, चढ़ना. क्लाइंब, क्लाइंब. नाउ हियर क्लोज, बंद करना. क्लोज्ड, क्लोज्ड. कुक, पकाना. कुक्ड, कुक्ड. केयर, परवाह करना. केयर, केयर. नाउ हियर क्रॉस मीन्स पार करना. क्रॉस्ड, क्रॉस्ड. नाउ हियर कंप्लीट, पूरा करना. कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. कंसीडर,
विचार करना, या फिर आप कह सकते हैं का विचार करना, क्योंकि हम किसी के बारे में विचार करते हैं, तो इधर दिया है का विचार करना। नाउ सेकेंड फॉर्म इज कंसीडर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज कंसीडर्ड। चीयर धैर्य बंधाना, और यू कैन से उत्साहित करना। चीयर्ड चीयर। कॉन्टैक्ट संपर्क स्थापित करना, कॉन्टैक्टेड कॉन्टैक्टेड। कॉल बुलाना, कॉल्ड कॉल्ड। चर्प चहचहाना, तो देखिए चिड़ियों के साउंड को चर्प कहते हैं। चर्प चहचहाना, चर्प चर्प। क्राई रोना, क्राइड क्राइड। तो गाइस एक बात ध्यान दें कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, लाइक हियर आर है, तो जब हम सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लेते हैं तो y इज चेंज्ड इनटू IED while making second form और third form. So here IED. ओके, और अगर y के पहले वॉवल आए तो y और ED लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रे का प्रेड, इस तरह से आता है। y चेंज नहीं होता है, y will be as it is and ed. Okay, now here dig खोदना, dug dug। deceive धोखा देना, deceived deceived। decorate सजाना, decorated decorated। die मरना, died died। divide बांटना, divided divided। डिस्क्राइब वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब। नाउ हियर अर्न कमाना, अर्न्ड अर्न्ड। एंटर अंदर आना, एंटर्ड एंटर्ड। नाउ फाइट लड़ना, फॉट फॉट। फाइंड पाना, फाउंड फाउंड। नाउ फीड खिलाना, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो उस वर्ब को फीड कहते हैं। फीड खिलाना, फेड फेड। फिनिश समाप्त करना, फिनिश्ड फिनिश्ड। फियर डरना, फियर्ड फियर्ड। नाउ हियर हैंग लटकना, हंग हंग। तो देखिए दूसरा भी वर्ब हैंग ही है, पर इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ, पहले मार्क कर देती हूँ। तो देखिए दूसरा जो वर्ब है हैंग, उसका मीनिंग है फांसी देना, एंड सेकेंड फॉर्म इज चेंज्ड हैंड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो चेंज्ड हैंड। तो देखिए लटकने का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग है, और फांसी देने का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैंड है। तो गाइज इसे आप अच्छे से नोट कर लें। और यहाँ पर हमारा वर्ब्स फिनिश नहीं होता है, पर नेक्स्ट 2 वीडियोस में हमारे वर्ब्स भी फिनिश हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।